میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ لوئی بیر آوان میں آوان ہاؤس روڈ و دیگر ملحقہ گلیوں کو پختہ کرنے کا کام جاری۔ ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ حلقہ NA52 کے MNA چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی راجہ خرم نواز صاحب نے دیا، جس کے لیے چیئرمین UC15 ملک اخلاق احمد آوان اور کونسلر ملک فضل محمود آوان نے کوششیں کیں۔ کام کا آغاز دعائے خیر سے ہوا۔ یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ یا علیہ، یہ ساری برادری، یہ سارا گاؤں علاقہ یہاں اکٹھا ہوا ہے ایک نیک مقصد کے لیے، یا علیہ مخلوق کی خدمت کے لیے یہ رستہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی خدمت کے لیے سارے بھائی اکٹھے ہوئے ہیں۔ یا علیہ ان سب کا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ یا علیہ اس کام میں جس نے جس طرح بھی حصہ لیا، یا علیہ اپنی شان کے مطابق اسے اجر عظیم عطا فرما۔ اس موقع پر چیئرمین ملک اخلاق احمد آوان، نسیم علوی، حاجی ملک صغیر احمد آوان، ملک فضل محمود، ملک واجد ایڈووکیٹ، ملک عابد، ملک مظہر حسین، چیف آرگنائزر تنظیم الآوان ملک حسرت آوان، حاجی قمر زمان، ملک صفدر، ملک مسکین، احمد حسین ہاشمی، ملک جاوید، نمبردار ملک شفقت، ملک شاہد آوان، ملک گلفراز، حاجی خرم، ملک شجاعت خرم، ذوالفقار بٹ، ملک امجد ریاض، حاجی شاہد، ملک دلبر حسین، ملک عبدالحفیظ، ملک انعام الحق، ملک افتخار، ملک شیراز، ملک عظمت، حاجی ظریف مغل، ملک محمود، گلفراز مغل، ملک شاداب، نوید آصف، ملک سہیل و دیگر موجود تھے۔ چیئرمین UC15 ملک اخلاق احمد آوان و دیگر معززین نے خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام حافظ امیر حمزہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ آج ہم لوئی بیر میں موجود ہیں، جہاں پہ UC15 لوئی بیر کے چیئرمین ملک اخلاق احمد آوان صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، جو ترقیاتی کام یہ کروا رہے ہیں اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں آپ خبرنامہ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمارے علاقے میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس کی کوریج کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ کی ذات کے بعد اپنے بھائی MNA راجہ خرم نواز صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف لوئی بیر میں پورے NA52 میں جو ان کا حلقہ ہے اس میں ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھایا ہوا ہے، جس کی کوریج آپ اکثر کرتے رہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ ہماری یونین کونسل لوئی بیر میں جو ترقیاتی کام ان 2-2.5 سالوں میں جب سے ہماری گورنمنٹ PTI کی آئی ہے اور ہمارے MNA صاحب نے، میں تو یہ کہوں گا پہلے دن جب وہ الیکشن جیتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک وہ 1 منٹ کے لیے سکون سے نہیں بیٹھے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے اس علاقے میں پہلے ایک ایسا MNA مسلط تھا کہ جس کو نہ ترقیاتی کاموں سے کوئی وابستگی تھی، نہ کوئی فکر تھی، نہ ہی عوام سے اس کی کوئی وابستگی اور فکر تھی۔ جب سے راجہ خرم نواز صاحب آئے ہیں انہوں نے الحمدللہ پورے حلقے میں ترقیاتی کاموں کا جو جال بچھایا ہے، اس کی مثال نہ تاریخ میں پہلے ملی ہے نہ آئندہ ملے گی۔ ہماری یونین کونسل میں جو راجہ خرم نواز صاحب کی طرف سے میگا پروجیکٹ ہیں، اس میں ہمارا پاکستان ٹاؤن بوائز کالج ہے جی، جو 35 کروڑ کی لاگت سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ہائی وے پر کرنگ برج اور PWD انڈر پاس کے پاس جو کام ہے وہ بھی آپ نے کوریج بھی کی ہے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کروڑوں روپے کا 2 ارب روپے کے راؤنڈ اباؤٹ وہ ایک پروجیکٹ ہے جس پر کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دیہی علاقے میں یونین کونسل لوئی بیر میں پچھلے 2 سالوں میں الحمدللہ ہمارے MNA راجہ خرم نواز صاحب نے 5-6 کروڑ روپے کا ہمیں فنڈ دیا، جس میں ہم نے لوئی بیر کے زیادہ تر 70 سے 80% علاقے کا کام کروا دیا ہے، جس میں لوئی بیر گاؤں میں فراش ہمارا دوسرا گھر ہے، فراش راجگان میں، اور آج یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا ایک مین رستہ تھا جو
गांव से शुरू होकर कैपिटल इनक्लेव की तरफ ये रास्ता आगे जाएगा, इस पर भी काम शुरू है। कल आपने एक कवरेज की थी जो हमारा गर्ल्स कॉलेज है लोई बेर में, उस पे काम काफ़ी अरसे से जारी था, फिर आज कल से उसकी कंक्रीट भी शुरू हो गई है, वो भी आपने कवरेज की है, उस पर भी हम राजा खुर्रम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा गांव में अंदर जो जितनी गलियां थी, सीवरेज का काम था जो पिछले 5-6 महीने से 1 साल से वो काम जारी है, वो भी आप लोगों ने कवरेज भी किया है और लोगों ने भी देखा है। इसके अलावा अभी हमें मज़ीद भी हमारे मैंने राजा खुर्रम साहब ने कुछ फ़ंड देने हैं, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की है। जो काम हमारे इस यूसी में रहते हैं, फराश राजगान में, इससे हमारे गांव के साथ जो मुल्हका डोके हैं जितनी हैं, इसके अलावा डोक कला खान में, जावा में, ये काम भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचेंगे और हमें फ़ंड मिलेगा और पाए तकमील तक हम इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। जो कमिटमेंट हमारी राज साहब के साथ हुई है, राज साहब ने कहा कि ये जो मैन बजट आ रहा है जून से पहले भी हमें 1-2 टेंडर इंशाल्लाह उम्मीद है कि मिलेंगे और जून के बाद भी काफ़ी तादाद में हमें पैसे, काफ़ी वाफर मिकदार में पैसे मिलेंगे। जो भी हमारे काम रहते हैं वो भी करवाएंगे। हमारी यूनियन कौंसिल के अलावा ये साथ हमारे मुल्हका यूनियन कौंसिल पाक पनवाल का गाँव चूचा शेखा है, यहाँ पर सीवरेज का काम, गलियों का काम वहाँ पर भी जारी है। आज लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे मिर्ज़ा उमर साहब हमारे भाई हैं, ये भी आए हैं, इन्होंने भी विज़िट किया है। चूचा में जो सीवरेज का काम जारी है, इसके बाद वो उसकी कंक्रीट वगैरह भी करेंगे। ये चूचा गांव में बदकिस्मती से पिछले पूरे इलाके में ये हालात है, लेकिन चूचा में काफ़ी अरसे से काम नहीं हो रहा था। इस पे हमने रिक्वेस्ट की, चूचा से हमारे जो दोस्त हैं वो भी गए हैं और हमने भी ज़ाती तौर पर चाचू फजल साहब ने, मैंने ये कोशिश की है कि चूचा की जो पसमानदगी है इस गाँव की, जो पिछले 25-30 साल से वहाँ पर तो काम हुआ नहीं और ख़ास करके सीवरेज का वहाँ पर एक मेगा इशू था, बड़ा इशू था, वो अल्हम्दुलिल्लाह लोकल गवर्नमेंट के तावन से राजा खुर्रम साहब ने जो फ़ंड दिया है उससे काम जारी है, वो भी हमारा काम पाया तकमील तक पहुँच रहा है। इसके अलावा यूनियन कौंसिल पाक पनवाल में बाकी भी काम जारी हैं, जिसकी निगरानी हमारे हल्के के कोऑर्डिनेटर मेंबर आसफ साहब कर रहे हैं और पाक पनवाल से जो हमारी पीटीआई की टीम है वो भी देख रही है। हम भी गाय बगा उन कामों को देखते रहते हैं और उनमें जो कमी बेशी होती है हम भी राजा साहब को रिक्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जापान रोड का काम है, यूनियन कौंसिल से आला में, रवात में काम लगा हुआ है, कुराल में लगा हुआ है, हुमक में लगा हुआ है। ये जितनी मुल्हका हमारी यूनियन कौंसिलें हैं सब में काम जारी है। इस हवाले से मैं अपने मैंने जापान रोड पर मामू जो बता रहे हैं, ये वो तरक्याती काम है इंशाल्लाह जिनको ये इलाका हमेशा याद रखेगा। आज मैं आपके इस चैनल के थ्रू अपने मैंने राजा खुर्रम नवाज़ साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, मैं अक्सर इंटरव्यूज़ में और बयानों में ये बात कहता रहता हूँ कि राजा खुर्रम साहब ने इस हल्के को सिर्फ हल्का नहीं समझा, उन्होंने इस हल्के को अपना घर समझा है, जिसकी ज़िंदा मिसाल आप जहाँ जाएँगे तरक्याती कामों के जाल बिछे हुए हैं, दिन रात काम हो रहे हैं। यही एक MNA का इलाके से वाबस्तगी की एक निशानी होती है। इसके अलावा उनका खुशियों गमियों में आना वो भी एक ज़िंदा मिसाल है। इंशाल्लाह हमारा इलाका वफ़ादार लोगों का इलाका है। हम पहले भी राजा खुर्रम साहब के साथ थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पूरे NA52 में सबसे विनिंग यूसी जो है वो यूनियन कौंसिल लोई बेर है। आइंदा भी इंशाल्लाह राजा साहब जब भी यहाँ, मैं तो ये आगे फ्यूचर को देख रहा हूँ कि राजा साहब को इस इलाके में इलेक्शन के दिनों में आना ही नहीं पड़ेगा, वो घर में बैठे रहेंगे और इंशाल्लाह लोग उनको वोट देंगे। जब भी इलेक्शन राजा साहब लड़ेंगे, मैं तो कहता हूँ राजा साहब हमेशा के लिए अब मैंने हमारे जी ये बात जो राजा साहब जी अपने अक्सर जलसों में और अक्सर मीटिंग्स में कहते रहते हैं कि देखें ये जो पसमानदगी थी इलाके में उसको एक इशू बनाकर इलेक्शन के दिनों में कुछ लोग आ जाते थे जी कि हम आपके इलाके में रोडों का काम करेंगे जी, हम अपने जेब से करेंगे, ये करेंगे। इंशाल्लाह राजा साहब का जो विज़न है कि तरक्याती काम को छोड़ेंगे ही नहीं, कि ना ही कोई बंदा आकर इस लालच में कि हम आपका तरक्याती काम करेंगे जी तो आप हमें वोट दें। वो राजा साहब का विज़न जो है वो पिछले 2 साल में इतना काम हो गया है कि मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो आगे हमारे 2-2.5 साल गवर्नमेंट के 3 साल रहते हैं, इसमें कोई काम बचेगा ही नहीं कि किसी को ये सियासत करने का मौका नहीं मिलेगा। और इसमें मैं लोकल गवर्नमेंट के जो हमारे नुमाइंदे हैं, मिर्ज़ा उमर साहब ये हमारे भाई हैं और इनके सीनियर जो लोग हैं वो एक अच्छी टीम है। DC साहब के अंडर लोकल गवर्नमेंट के लोग भी हमारे दही इलाके से राजा खुर्रम साहब की हिदायत पे पूरा तावन करते हैं। जब हम किसी काम के लिए जाते हैं, जिस किसी काम में कमी बेशी होती है, महकमा हमारे साथ बहुत अच्छा तावन कर रहा है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि MNA साहब की तरफ से हिदायत होती है, फ़ंड उनका होता है, काम इन्होंने करवाना होता है और आगे टीम हम सारे हैं मिलकर हम काम करवा रहे हैं। एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है जी। राजा साहब की
क़यादत में लोकल गवर्नमेंट और लोकल हम जो नुमाइंदे हैं, ये एक अच्छी टीम बनी हुई है और पूरे इलाके में तरक्याती काम जारी हैं जी। लोकल गवर्नमेंट के जो ये काम जारी हैं महकमे की तरफ से जी, बिल्कुल हम इस पे मुतमिन हैं। बाकी काम में कमी बेशी थोड़ी बहुती हो जाती है। हमारे डीसी साहब इस सारे काम को फॉलो करते हैं। इनकी टीम जो मिर्ज़ा उमर साहब हमारे इलाके के इस साइड के इंचार्ज हैं, जब भी हम किसी काम में कोई कमी बेशी देखते हैं तो हम उसी टाइम इनसे रब्ता करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई हमारे अच्छी एक डीसी साहब की टीम है, जो जहाँ पर कोई किसी काम में मसला होता है ये टीम खुद आकर मौके पर लोगों के मसाइल सुनते भी हैं और उनको हल कर, जिसकी ज़िंदा मिसाल आज है कि हमें यहाँ पर जो जारी तरक्याती काम था इसमें कोई कमी बेशी थी, तो उसमें आज हमने मिर्ज़ा साहब को बुलाया और हमने इन्हें रिक्वेस्ट की जी कि यहाँ जो काम हमारा जारी है, लेकिन बकौल ठेकेदार साहब के फ़ंड की कमी की वजह से वो काम पाया तकमील तक नहीं पहुँच रहा था, तो मिर्ज़ा साहब ने उन्हें कहा जी कि ये जिस तरह भी मुमकिन है ये काम कंप्लीट करें। काम का इस काम के हवाले से बता दें कि कितना टाइम लगेगा इसको मज़ीद। अब जो बात मैं कह रहा था जी, काम के स्टैंडर्ड में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, ये सख्ती से हर चीज़ को चेक करते हैं और जिस काम में थोड़ी बहुत ही कमी बेशी होती है ये ठेकेदार साहबान को कहते हैं कि इनको कंप्लीट करें। और जारी तरक्याती जो काम है जी, इंशाल्लाह जो हमारा महकमे के साथ और ठेकेदार के साथ कमिटमेंट है, ये विद इन मंथ हम सारे काम जो यूनियन कौंसिल लोई बेर में लगे हुए हैं ये इंशाल्लाह रमज़ान से पहले ये कंप्लीट हो जाएंगे जी। हुए हैं और ये सारा सेरा जो है ये हमारे मतलब इखलाक अवान साहब जो मेरा भांजा है इनके सर पर है और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी सारा काम करवाया और अब कोई गली गांव में रही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस एरिया सारा जो है ना, जहाँ जहाँ कोई एक घर भी बना है वहाँ भी रोड पहुँच गई है और सीवरेज आ गई है। और सिर्फ ये जो अब मज़ीद जो ये काम हो रहा है, नीचे जा रही है रोड, वहाँ से ये लुईबेर को एक मुतबादल रास्ता मिल जाएगा और ये बड़ा रास्ता है, ये छोटा रास्ता नहीं है। मेन एक दिन होगा यही रास्ता बनेगा, ये मेन रास्ता है, खुला रास्ता है और इसी पर सारी ट्रैफिक आएगी। तो मैं फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी सेहत के लिए, इनकी उम्र के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद ये काम करने की अपनी ज़िंदगी में सलाहियत नसीब करे, आमीन। जितने भी काम हुए मैं सबसे मुतमिन हूँ कि ठीक काम हुए हैं और अच्छे काम हुए हैं।